ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 4B ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟਸ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ AC। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ DC ਸਰਕਿਟਸ ਪੜ੍ਹੇ। DC ਦੇ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਮਸ ਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ DC ਸੋਰਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, V = IR, ਤੇ R ਕੀ ਸੀਗੀ, ਓਮਿਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ R ਸੀ, ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ AC ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। AC ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ AC ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ AC ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਲੋਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ AC ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਤੇ ਚੀਪ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ one point to another point ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ, ਐਨਰਜੀ ਲੋਸ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ AC ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ DC ਤੇ ਇੱਕ AC। DC ਮੀਨਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰੰਟ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, DC ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਟਾਈਮ T ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ ਨਾ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ DC ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਟ AC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ AC ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ I and T। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨੋਸੋਇਡ ਵੇਵਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ AC ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ 0 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ T ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ T/2। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੀ ਹੈ T/2। T/2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਵ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ T/2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਵੇਵਸ ਨੇ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਨ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ x(t), ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ। A sin of ωt ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ cos ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ y(t) A cos of ωt। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ A ਕੀ ਸੀ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵੇਵ। ਠੀਕ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ I = I0 sin of ωt। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। I = I0 sin of ωt ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ I = I0 cos of ωt। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। I0 ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ A ਕੀ ਹੈ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, I ਕੀ ਹੈ, I0 ਕੀ ਹੈ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ, ਐਂਡ I ਕੀ ਹੈ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ।
इंस्टेंटेनियस मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किन्ने टाइम ते किन्नी वैल्यू। आप तुम इधर देख भी सकते हो कि मैं लिखा है एक्स ब्रैकेट दे टी लगाया, मतलब एक्स फंक्शन ऑफ टी टाइम दे नाल जिहड़ा है चेंज होई जा रहा है, राइट। सो आई जिहड़ा है इत्थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई नॉट पीक वैल्यू, ओमेगा की है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सी। हुण ओमेगा तुहानूं पता है की रिलेशन है 2 पाई बाय टी, 1 बाय टी की हुंदा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ते टाइम पीरियड का ही रिलेशन हुंदा, लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा की है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। साडे कोल लीनियर ते एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिलेशन कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू, राइट। सो तुसीं इधर देखो कि मैं डायग्राम ड्रॉ किया होया AC वास्ते। ये साडे कोल वेव है, टाइम पीरियड इज द टी है ते फ्रीक्वेंसी न्यू है। हुण तुसीं इत्थे देख लो कि जिहड़ी आह पीक ते है, ठीक, इत्थे जिहड़ी वैल्यू होएगी करंट दी, इसनूं मैं कह रही हां पीक वैल्यू आई नॉट, ते इधर नूं जिहड़ी है आह वैल्यू है आई नॉट, ठीक। यह नैगेटिव दे विच एंड ये की है पॉजिटिव दे विच। एंड एक मैं होर तुहानूं किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, तो इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ते किन्नी वैल्यू है। जे मैं कहा इन इत्थे जदों इन्ना टाइम है तो इत्थे किन्नी वैल्यू है, मैं कर्व ड्रॉ कर लाइन जिहड़ी है ड्रॉ करके देखूंगी तो इत्थों देख लूँगी मेरे को वैल्यू यही आएगी। फिर किसी होर इंस्टेंट ते देखनी होएगी मैं वैल्यू तो इत्थों देख लवांगी ये इधर नूं वैल्यू, तो इत्थे इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जिहड़ी हो टाइम दे नाल चेंज हुंदी जा रही है। सो मैक्सिमम वैल्यू किन्नी लेगा करंट, प्लस आई नॉट एंड माइनस आई नॉट। सो आफ्टर T/2 अपनी जी डायरैक्शन है करंट को चेंज कर ले। हुण इत्थे दो कर्व्स तुसीं देख रहे हो, दोवां दे विच डिफरेंस की देखना है फ्रीक्वेंसी का। इस डायग्राम दे विच तुसीं देख रहे हो कि एक वेव जिहड़ी है वो टाइम पीरियड कितना लैंदी है टी, मतलब टी टाइम तो बाद साइकिल जिहड़ा वो कंप्लीट होएगा, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने टाइम कितना लगता है टी। तुसीं नैक्सट डायग्राम दे विच देख रहे हो कि हुण इत्थे की हो रहा है कि 0 to T टाइम दे विच जिवें पहला एक वेव आ रही सी, ठीक, हुण 0 to T टाइम दे विच तुसीं देख रहे हो कि दो वेव्स आ रही ने, एक वेव ए होगी ते एक वेव ए होगी, ठीक। तो हुण इत्थे जिहड़ा है एक साइकिल नूं कंप्लीट करने वास्ते टाइम कितना लग रहा है हाफ। इत्थे एक साइकिल नूं कंप्लीट करने वास्ते टाइम कितना लग रहा है टी। इस दे कंपैरिजन दे विच जे आपां देखीए ते इत्थे टाइम एक साइकिल नूं कंप्लीट करने वास्ते कितना टाइम लग रहा है, इस दे नालों हाफ कितना T/2। आही चीज़ मैं इत्थे लिखी है कि T/2 इक्वल टू टी डैश, मतलब इस वेव वास्ते एक नवा टाइम पीरियड कितना हो टी डैश, ते इस दे कंपैरिजन दे विच कितना हो T/2। मतलब इत्थे एक वेव T/2 टाइम दे विच साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो इत्थे की है टी टाइम दे साइकिल कंप्लीट कर रही है। हुण देखण वाली चीज़ की है कि फ्रीक्वेंसी का की मतलब है, इत्थे फ्रीक्वेंसी की हो रही है, इत्थे 2 न्यू फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब किसी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सैकेंड, एक सैकेंड दे विच किन्ने साइकिल, ठीक। तां हुण तुसीं देख रहे हो कि 0 तो लैके टी दे विच किन्ने साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, 2, 1 2। आही चीज़ मैं इत्थे लिखी है। न्यू डैश किन्ना है, इस प्रीवियस डायग्राम दे अगर आप कंपैरिजन दे विच लिख रहे हैं, दोवां नूं कंपेयर करके लिख रहे हैं, तो न्यू डैश किन्ना है ट्वाइस न्यू। क्योंकि तुसीं देख लो वैसे भी फ्रीक्वेंसी ते टाइम पीरियड का रिलेशन के इनवर्स है, ठीक। जे इनवर्स है मतलब इत्थे एक साइकिल नूं कंप्लीट होने वास्ते टाइम कितना लग रहा है अद्धा, तो फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी डबल, ठीक। उस तो बाद लिखिए मैं ऑल्टरनेटिंग EMF किवें रिप्रजेंट करते हैं, E0 साइन ऑफ ओमेगा टी या फिर E इक्वल टू E0 कॉस ऑफ ओमेगा टी। सेम चीज़ इत्थे है, E के इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू ऑफ EMF, ओमेगा ऑल्टर एंगुलर फ्रीक्वेंसी T टाइम पीरियड। उस तो बाद आ जाती है डेफिनेशन ट्रांजिएंट करंट्स की। देखो
ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ 0 ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 0 ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਣੀ 0 ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ 0 ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਗੋ ਫਰੋਮ 0 ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਮਾਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਲੈਣਗੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 0 ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਕੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੋਂ 0 ਵੈਲਿਊ। ਉਹਨਾਂ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਐਂਟ ਕਰੰਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਸੈਂਡ ਦਾ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਥਰੂ ਦਾ ਸਰਕਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ, ਇਹ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ AC ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਰਿਪੀਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਟੈਡੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੇਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ AC ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ I ਦਾ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦਾ ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ, ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ DQ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DT ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ I ਇਕੁਅਲ ਟੂ DQ ਬਾਈ DT, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ DQ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ 0 ਟੂ T/2। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਕਿ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਲ ਹੈ, DQ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ DT ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਟ ਚੋਂ ਸੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ 0 ਟੂ T/2। I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ I ਨੋਟ ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ I ਨੋਟ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਕ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ I ਨੋਟ 0 ਟੂ T/2 ਸਾਈਨ ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ dt। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ cos ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ 0 ਟੂ T/2। ਸੋ Q ਇਕੁਅਲ ਟੂ I ਨੋਟ ਬਾਈ ਓਮੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੰਟੈਗਰਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ cos ਆਫ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ T/2 ਮਾਈਨਸ cos 0। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ that T is equal to 2π/ω, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2π ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, Q ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ I ਨੋਟ ਬਾਏ ਓਮੇਗਾ, ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2π, 2π/2 ਮਾਈਨਸ cos ਆਫ 0 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ I ਨੋਟ ਬਾਏ ਓਮੇਗਾ, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ,
cos पाई माइनस cos of 0 डिग्री। So Q is equal to minus I naught by omega cos 180 minus 1 cos 0 minus 1 cos 0 1 cos 180 minus 1। So इत्थे की वैल्यू आ जाएगी 2 I naught by omega। हुन नेक्स्ट है बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन सानू की पता सी Q इक्वल टू आई एम इंटू टी बाय 2। वैसे मैं किवें लिख रही हाँ I इक्वल टू Q बाय टी हुंदा है, ठीक। सो इत्थे I इक्वल टू Q ते टाइम इत्थे कितना ले रहे थे, हाफ साइकिल वास्ते कैलकुलेट कर रहे हैं। सो टी बाय 2। सो इत्थों Q कितना आ गया आई एम इंटू टी बाय 2। एम मतलब मीन वैल्यू, ठीक। हुण इत्थे कि इक्वेशन साडे कोल 1 है, यह इक्वेशन 2 है। नाउ इक्वेट 1 एंड 2। लैफ्ट साइड ते दोवां दे क्यू है, इसनू इक्वेट कर लो। आई एम इंटू टी बाय 2 इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय ओमेगा। दिस इंप्लाइज आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाय ओमेगा इंटू 2 बाय टी। दोबारा फिर तो आही उपर एक रिलेशन लिखा सी आपां ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, इसनू इत्थे यूज कर लेना। ओमेगा टी किस दे बराबर है 2 पाई दे। सो आई एम इज इक्वल टू 2 आई नॉट इंटू 2। ओमेगा टी 2 पाई दे बराबर सीगा, 2 नाल 2 कैंसल आउट, दिस इज 2 आई नॉट बाय पाई। जो तुसी इसनू कैलकुलेट करोगे इसदी, जो तुसी इसनू कैलकुलेट करोगे इसदी जिहड़ी वैल्यू है इट विल बी 0.637 आई नॉट, या तुसी इनू परसेंटेज दी फॉर्म लिख सकते हो 63.7% आई नॉट। हुण जे तुसी जिहड़ा है इसनू नैक्सट हाफ साइकिल, जो तुसी नैक्सट हाफ साइकिल वास्ते कैलकुलेट करोगे टी बाय 2 टू टी, इसदी वैल्यू आएगी माइनस दे विच। सो आई एम इत्थे कितना आएगा उदों माइनस 0.637 आई नॉट। सो जो तुसी टोटल साइकिल लोगे, टोटल साइकिल मतलब 0 टू टी लोगे तो तुसी ऐड करके देखो मीन वैल्यू कितनी आने वाली है 0। सो हमेशा जिहड़ी मीन वैल्यू हो हाफ साइकिल ते कैलकुलेट करनी है। ते जिहड़ा मीन वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट दी इस दा पीक वैल्यू दे नाल की रिलेशन है, दैट मीन वैल्यू इज 0.637 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट। नैक्सट आर्टिकल है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। पिछे आपां कीता अल्टरनेटिंग करंट, हुण असीं कर रहे हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। डेफिनेशन की है कि जिथे असीं उत्थे लिखदे हुंदे सी इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टैडी करंट, तां तुसीं इत्थे की लिखना इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ कॉन्सटेंट या स्टैडी ईएमएफ। कॉन्सटेंट या स्टैडी दी मतलब सेम ही है। कॉन्सटेंट ईएमएफ विच वुड जनरेट दा, जेड़ा कि विच वुड सेंड दा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब जेड़ा सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करूगा थ्रू द सेम सर्किट फॉर द सेम टाइम एज इट इज डन बाय एसी फॉर द सेम टाइम थ्रू द सेम सर्किट। डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। डिफरेंस क्या है कि पिछले तुसी स्टैडी करंट लिखिया से, इत्थे तुसी स्टैडी ईएमएफ लिखना है। सो तुसी हुण इत्थे की लेना ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट वास्ते तुसी लिया सी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। सो इत्थे एक छोटा जिहा डिफरेंस की है कि इत्थे ई इक्वल टू आई आर वाला आपां स्टैप ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली असी की देखना है, असी चार्ज देख रहे हैं दैट डी क्यू इज द स्मॉल चार्ज इन टाइम डी टी। उत्थे भी असीं यही किया सी कि मान लो कि डी क्यू चार्ज जिहड़ा वो डी टी टाइम वास्ते सर्किट चों पास हो रहा है। सो डी क्यू की वैल्यू कितनी सी आई डी टी। तो उत्थे आ स्टैप नहीं लिखिया सी, असी इसनूं ही सीधा इंटीग्रेट कीता सी, ठीक। असी करंट कढना सी उदों, पर हुण असी करना है ईएमएफ। तो असी जिहड़ा है ये वाला स्टैप विच एक ऐड करांगे। ये कित्थों आ रहा है ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर तो, बट वी नहीं लै रहे असी इत्थे, की लै रहे हैं ई। क्यों? क्योंकि एसी वास्ते जिहड़ा है चेंज हो रहा है, अल्टरनेटिंग है। सो इत्थों जिहड़ा है सानू किहदी वैल्यू चाहिदी है आई दी, इत्थों रीअरेंज करके आई दी वैल्यू कड्ढी ई बाय आर। हुण ई दी वैल्यू कितनी है ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, पुट करो तो इसनूं इंटीग्रेट करना है।
सो ये आर्टिकल तुसी जिहड़ा है अपने आप करना। मैं रिपीट कर दिन्नी आ। डेफिनेशन की है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं हैगा डेफिनेशन दे विच। जिथे तुसी करंट वास्ते स्टैडी करंट लिख रहे सी, EMF वास्ते स्टैडी EMF लिखना है। इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ कॉन्सटेंट EMF विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट इन द टाइम ऑफ हाफ साइकिल एज इट इज़ डन बाय AC। जिन्ना के जिहड़ा AC है सेंड करदा उन्ना ही जिहड़ा है स्टैडी करंट जिहड़ा है स्टैडी EMF सेम चार्ज सेंड करेगा सेम सर्किट दे विचों सेम टाइम वास्ते जिन्ना के AC करदा है। ऑल्टरनेटिंग EMF की इक्वेशन लिखी, ओम्स लॉ तो इक्वेशन लिखी, इत्थों असीं I की वैल्यू कड्ढी, अगेन I इक्वल टू Q/T, इत्थों जिहड़ा रीअरेंज करके वैल्यू पुट करनी। ये आर्टिकल तुसीं आप करना। नैक्सट आर्टिकल है रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ, ਮੀਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ EMF। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। इसे तरह आएगा साडे कोल आर्टिकल रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। सो इसकी डेफिनेशन की है, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टैडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। कहंदा यह ओह वैल्यू है स्टैडी करंट दी जेड़ा कि सेम अमाउंट ऑफ हीट नू प्रोड्यूस करेगा इन द गिवन रजिस्टेंस गिवन टाइम दे विच जिन्ना के AC जनरेट करती है जदों उसनू असीं सेम सर्किट दे विचों सेम टाइम वास्ते पास करते हैं। ठीक, सो RMS इज द RMS वैल्यू की इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टैडी करंट विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। देखो इसकी जिहड़ी है जो तुसीं मीन वैल्यू की डेफिनेशनस कीतियां ने उहदे नालों डिफरेंस की है। तुसीं मीन वैल्यू दे विच की कहंदे हुंदे सी, इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टैडी करंट विच वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। इत्थे असीं कहंदे सी कि चार्ज कितना सेंड हो रहा है, तां ही असीं जिहड़ा है I इक्वल टू dQ/dt करके dQ की वैल्यू कैलकुलेट करते सीगे। राइट, हुण इत्थे असीं कह रहे हैं कि जिहड़ा कि की करेगा जनरेट करेगा हीट नू। बस इत्थे इन्ना क डिफरेंस है मीन वैल्यू दे नालों। मीन वैल्यू दे विच असीं कहंदे सी इट वुड सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, इत्थे असीं कह रहे हैं इट वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखी मैं करंट दी। हुण इत्थे की लिख रही है कि मान लो dt टाइम दे विच DH हीट प्रोड्यूस हो रही है। मीन वैल्यू दे विच की लिखदी सी मैं कि dt टाइम दे विच DQ चार्ज सेंड हो रहा है। ठीक है, इत्थे डेफिनेशन दे विच असीं की कह रहे हैं, इट वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। सो DH इक्वल टू I²R dt। हुण I इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी वैल्यू जिहड़ी इत्थे पुट कीती है। चलो हुण आपां इसनूं सॉल्व करदे हां। DH इज इक्वल टू I0² sin² ओमेगा टी R dt। जिहड़ी मीन वैल्यू सी उसी हाफ साइकिल ते कैलकुलेट कीती सी 0 to T/2 ते जिहड़ी RMS वैल्यू है उसनूं तुसीं जिहड़ा है फुल साइकिल ते कैलकुलेट करोगे। सो इंटीग्रेट ओवर कंप्लीट साइकिल 0 to T, H इक्वल टू 0 to T I0² sin² ओमेगा टी नाल आ रहा है R इंटू dt। ठीक, आही इक्वेशन अपने कोल पिछे आई सी। हुण इत्थे जिहड़ा है I0 की है पीक वैल्यू है, इसनूं आपां इंटैगरल तो बाहर लै लैने हुंदे आ। R भी की है रजिस्टेंस है, ये भी चेंज नहीं हो रही, ये भी इंटैगरल तो बाहर है। I0² R 0 to T sin² ओमेगा टी dt। राइट,
साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पुट करो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाई 2 ट्रिग्नोमैट्रिक आइडेंटिटीज़ ने फंक्शनस ने तुहानूं याद होणगे। ब्रैकेट नूं ओपन करदे आपां आई नॉट स्क्वायर 2 नूं पहले बाहर लै लैंदे आ इंटैग्रल तो 0 टू टी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 जे आप इंटैग्रल अलग अलग करिए 0 टू टी डी टी माइनस इंटैग्रल 0 टू टी कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी, राइट। सो एच इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 t is the integration to t cos दी इंटीग्रेशन की होएगी साइन ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा 0 टू टी, राइट। h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r बाय 2 t माइनस 0 माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी आ गया माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। हुण देखो अगेन टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, ठीक। सो तुसी जिहड़ा है इत्थे ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर लो कितनी है 2 पाई। सो कॉस ऑफ 4 पाई माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री, राइट। एक मिनट इत्थे जिहड़ा है आपां साइन ऑफ 2 ओमेगा टी कॉस दी इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2 ते कॉस लिखता इत्थे आएगा साइन, इत्थे पुट कर रहे ना आप वैल्यू साइन साइन इत्थे भी साइन साइन हेयर ठीक। सो एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 टी माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा साइन 4 पाई कितना होता 0 साइन 0 0। सो एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 टी माइनस 0। सो दिस इंप्लाइज एच कितना आ गया आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2। इनू इक्वेशन नंबर 1 पुट करो। सो अगेन बाय definition h is equal to हुण जिवें आपां उत्थे लिया सी क्यू कंसीडर करते सी आपां है ना क्यू इक्वल टू आई एम आपां लैंदे सी ना क्यू इक्वल टू आई एम इंटू टी बाई 2 आर एम एस सॉरी मीन वैल्यू दे विच। तां हुण इत्थे असीं बाय डेफिनेशन की लै रहे हैं h इज इक्वल टू आई वी स्क्वेयर आर टी, ठीक। यही साडे कोल फॉर्मूला यही हुंदा ना एच इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। जे तुहानूं याद होवे तां आपां पावर की लैंदे हुंदे सी पी इक्वल टू आई स्क्वेयर आर ते हीट जनरेटेड कितनी होएगी आई स्क्वेयर आर टी। सो इत्थे वी की है वर्चुअल वैल्यू या आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। असीं इहनूं आर एम एस नूं वर्चुअल भी कह दिंदे हुंदे इफैक्टिव भी कह दिंदे हुंदे। सो वर्चुअल दा असीं इत्थे की लगा लिया वी ते टी असीं इत्थे कंप्लीट साइकिल लै रहे हैं तो असीं टाइम कितना लै रहे हैं टी। सो इक्वेट किया 1 एंड 2 नूं इक्वेट 1 एंड 2 आई वी स्क्वेयर आर टी इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वेयर आर बाय 2। So I v square is equal to
आर नाल आर कैंसल आउट, आई नॉट स्क्वायर बाय 2, आई वी स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर टी, कितने रह गया अपना टी है ना, टी राइट। तो थोड़ा जा ध्यान नाल करना, आई वी इक्वल टू आई नॉट बाय √2। जो तुसीं इनू कैलकुलेशनस करोगे आई वी कितना आएगा 0.707 आई नॉट, या तुसीं लिख सकते हो 70.7% आई नॉट। सो तुसीं इत्थों की वैल्यू कैलकुलेट की कि जिहड़ी वर्चुअल वैल्यू है करंट की वो कितनी होगी 0.707 टाइम्स दी पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इस वजह तुसीं दोबारा देख लो कि जब आप इंटीग्रेशन की सी कॉस दी, कॉस दी इंटीग्रेशन साइन, तो गलती ना कॉस लिखा गया सी, इत्थे की आ रहा साइन 4π0। सो इतों बाई डेफिनेशन इक्वेट करके आप जो है रिजल्ट बना लिया। इसी तरह हूँ एक अगला होर आर्टिकल है जिसे करनी है RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी है अल्टरनेटिंग EMF की। जिवें असीं मीन वैल्यू कैलकुलेट की सी अल्टरनेटिंग करंट की, फिर तुसीं जिहड़ा है मीन वैल्यू कैलकुलेट की अल्टरनेटिंग EMF की, हुण उस तो बाद तुसीं कीता RMS वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की, हुण तुसीं करनी है RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF, RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF। ये आर्टिकल भी तुसीं आप करना है, मैं बस 2-3 स्टैप्स जिहड़े स्टार्टिंग दे दसूँगी। सो इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। सो इत्थे की डिफरेंस है, जिवें तुसीं पिछली डेफिनेशन दे विच लिखिया सी इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टडी करंट, तो तुसीं इत्थे की लिखना इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ स्टडी वोल्टेज विच वुड जनरेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट, जिहड़ा कि सेम अमाउंट ऑफ हीट नूं प्रोड्यूस करेगा या जनरेट करेगा इन द गिवन रजिस्टेंस गिवन टाइम दे विच, जिन्ना कि AC करदी है जदों असीं उसनूं सेम सर्किट दे विच सेम टाइम वास्ते पास करते हैं। ठीक, सो अल्टरनेटिंग EMF दी इक्वेशन लिखी, मान लो DH जिहड़ी है हीट प्रोड्यूस हुंदी है DT टाइम दे विच, सो DH इक्वल टू I²R DT। पिछले आर्टिकल दे विच आपां की कीता सी, इत्थे डायरैक्ट जिहड़ी है I दी वैल्यू पुट कीती सी, बट हुण साडा आर्टिकल के EMF दा सी जिहड़ा है इक्वल टू IR हुंदा, सो I इक्वल टू E/R। ठीक, इत्थे वैल्यू पुट की, वेट किया, एक R कैंसल आउट हो रहा है, इक्वेशन आपां वैल्यू पुट करके एक R कैंसल आउट करता, E दी वैल्यू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। हुण तुसीं इत्थे की करोगे, R कॉन्सटेंट इंटैगरल तो बाहर आएगा, E0 इंटैगरल तो बाहर आएगा, तुहाडे कोल की बचेगा sin² ओमेगा टी, आही चीज़ बच जाएगी, आही वाला इंटैगरल तुहाडे कोल फिर बचेगा sin² ओमेगा टी वाला एक्सप्रैशन जिहड़ा हो इत्थे बच गया, क्योंकि E0 भी इंटैगरल तो बाहर आ रहा है तो R भी। सो ये जिहड़ा आर्टिकल तुसीं आप करना, वैल्यू सेम आएगी 0.707 टाइम्स।